Dear friends, welcome to video lecture series on surveying. Now today we will go for lecture number 5 and that is all about problems on latitude and departure. Now in previous lecture we have seen that how we can use the theodolite for theodolite traversing. So three important methods we have seen. The first method is that is included angle method. Then second we have seen that is deflection angle method, and third we have seen that is magnetic bearing method or fast needle method. So the purpose of doing all this is we are requiring the more accurate traversing. So for that we are using the multi-purpose instrument, that is theodolite. So we can also measure the bearing with the help of theodolite. We can measure the distance with the help of theodolite also. We can measure the included angle also, and with this calculation we can plot the traverse more accurately. As in case of compass, there is more closing error in the plotting of the traverse on the sheet. But with the theodolite traversing, by using some of the techniques, we can also plot the traverse more accurately. So for that we have to utilize the concept of latitude and departure. So in previous lecture we have seen that the north component of any survey line, that is called as latitude, that is northing and southing component, and easting and westing component of any survey line, that is called as departure. So in that way, for any particular line, if we calculate the latitude and departure, so latitude will be L cos theta, where theta is the bearing of the survey line, and departure is L sin theta. So in that way we can calculate the north south component or east west component of any survey line. So when we talk about any survey line, always there is vertical component, that is north south component, that is called as latitude of that line mathematically, and the horizontal component, that is easting and westing component, that is departure of that survey line. So by using the concept of latitude and departure, we can calculate the coordinates of the survey station, and because of that coordinate calculation our plotting of the traverse is more accurate. तो इसके पहले हमने जो देखा है कि किसी भी सर्वे लाइन का हम लोग लैटिट्यूड और डिपार्चर कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दैट वी विल अगेन रिवाइज and then we will solve today the problem based on the latitude and departure. So in previous lecture हमने सबसे दो important concept देखे थे कि पहला है हमारा consecutive coordinate and दूसरा है independent coordinate. So consecutive coordinate क्या है? तो एक सर्वे लाइन है हमारी AB, उसका यदि आप latitude और departure निकालते हैं तो AB लाइन का जो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा latitude and departure of that line. Means in for any survey line, the latitude and departure of that survey line indicates the coordinate of the next point with respect to A. B के कोऑर्डिनेट निकलेंगे अपने को L cos थीटा L sin थीटा, और ये जो कोऑर्डिनेट है यानी L cos थीटा L sin थीटा means latitude and departure of that line indicates the coordinate that called as consecutive coordinate. तो हम लोग कभी भी जब when we trying to plot a survey line, so suppose here, so this is our north and south component, north and south direction, this is east and this is west, and suppose this is station A and we plot this survey line, so this is AB line and this is angle theta, that is the bearing of this survey line. So we can have the vertical component of this. So this is vertical component, this is vertical component of line AB. So here we can say that this is actually line AB. So the vertical component, that is L cos theta, it is called as latitude, and horizontal component, so this one is the horizontal component, that is represented at L sin theta, and it is called as departure. So with respect to A, suppose our A is the origin,
So then coordinate of point B will be, the coordinate of point B will be L cos theta comma L sin theta. Means this is northing or southing and this is easting or westing. जब हम इस प्रकार से किसी भी ए बी लाइन के लिए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने लिखा, कैसे लिखा? एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा. एल कॉस थीटा क्या है? नॉर्थिंग और साउथिंग कंपोनेंट ऑफ द सर्वे लाइन, और एल साइन थीटा ईस्टिंग एंड वेस्टिंग कोऑर्डिनेट, यानी पहले वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्थ साउथ वाला, बाद में दूसरा ईस्ट वेस्ट वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ऐसा एक्स कॉमा वाई हम लोग लिख सकते हैं. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई. सो ऐसे कोऑर्डिनेट हम जब लिखेंगे तो ये दोनों भी कोऑर्डिनेट मींस बी पॉइंट के कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट हो गए. दे आर कॉल्ड एज कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट. So the coordinate of survey line which is northing and easting value with respect to previous point is called as consecutive coordinate. So that is the definition of the consecutive coordinate. अब ये consecutive coordinate ये हर एक लाइन के लिए हो गया. हम लोग इस प्रकार से हर एक लाइन के लिए उसका नॉर्थिंग साउथिंग और ईस्टिंग वेस्टिंग कंपोनेंट निकाल सकते हैं और वो हो जाएगा आपका consecutive coordinate. लेकिन यदि आपको ट्रैवर्स प्लॉट करना है तो आपको जो कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट है ये विथ रिस्पेक्ट टू 0,0 लगेंगे, मींस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लगेंगे, या और विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन ओरिजिन लगेंगे. सो मोर कॉमन ओरिजिन इज 0,0 और यू कैन कंसिडर 100,100 और 1,000,1000. सो व्हेन वी मॉडिफाई दिस कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, सो दे बिकम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, क्योंकि फिर वो लाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, क्योंकि वो ओरिजिन के ऊपर डिपेंड हो जाते फिर बाद में. So they are called as independent coordinate. So in that way, in previous lecture we have seen the definition of independent coordinate and consecutive coordinate. So coordinate of any point with reference to the preceding point are equal to the latitude and departure of the line joining the preceding point of the point. So such coordinates are known as consecutive coordinate, जैसा कि अभी हमने देखा. Similarly, यदि हम लोग टोटल लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन ओरिजिन निकालते हैं तो वो हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट. सो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट दे आर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 0,0 और एनी सर्टन फिक्स ओरिजिन, एंड द कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट दे आर डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, दे आर फॉर पर्टिकुलर सिंगल लाइन, दे आर फॉर पर्टिकुलर सिंगल लाइन एंड द कोऑर्डिनेट्स आर डिपेंड अपॉन द प्रीवियस पॉइंट. सो इन दैट वे, so L latitude and departure they are called as consecutive coordinate, and when we convert this latitude and departure with respect to common origin they become independent coordinate. अब ये independent coordinate निकालने के लिए या latitude departure निकालने के लिए उसके अंदर यदि करेक्शन आता है तो वो भी करेक्शन हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा. So we have seen these formulas also. Now with the help of these we will go for actual calculation of the latitude and departure and how it helps in plotting the traverse, that we will see. तो सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट यूज हमारा लैटिट्यूड डिपार्चर का ये है कि यदि हम लोग लैटिट्यूड और डिपार्चर किसी ट्रैवर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, यानी एक क्लोज ट्रैवर्स है हमारा, सो एनी ट्रैवर्स इज सपोज फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एंड दिस, सो ए बी सी डी एंड ई एंड ए, सो दिस इज वन ऑफ द क्लोज ट्रैवर्स. अब ये क्लोज ट्रैवर्स में क्या हो रहा है, तो ए बी लाइन के लिए ये हो गया मेरा लैटिट्यूड, ये हो गया डिपार्चर, फिर बी सी लाइन के लिए ये हो गया डिपार्चर, ये हो गया लैटिट्यूड, फिर ये वाले लाइन के लिए यही हो गया लैटिट्यूड, डिपार्चर नहीं है इसका, फिर ये लाइन के लिए दिस इज लैटिट्यूड वर्टिकल वाला और हॉरिजॉन्टल वाला डिपार्चर, फिर ये वाला डिपार्चर और फिर ये वाला लैटिट्यूड. तो मैं जहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ वहीं से लैटिट्यूड और डिपार्चर करते करते मैं वहीं पहुँच रहा हूँ. इसका मतलब क्या है, ये लैटिट्यूड अभी वर्टिकल जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये लैटिट्यूड निगेटिव है, यहाँ पर भी ये लैटिट्यूड निगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, लेकिन ये दोनों की टोटल करेंगे तो लैटिट्यूड की सम 0 आने वाली है, क्योंकि जितना अपन यहाँ से इधर पॉजिटिव है उतनी वैल्यू निगेटिव भी है लैटिट्यूड की. सो हियर वी कॉल एट सम ऑफ द लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0 इन ए क्लोज ट्रैवर्स. तो किसी भी क्लोज ट्रैवर्स में लैटिट्यूड की सम करेंगे तो 0 आएंगे. इसी प्रकार से यदि डिपार्चर देखते हैं तो ये पहला वाला डिपार्चर हमारा ईस्टिंग वाला है, प्लस है, ये भी वाला प्लस है, और जब ये वाला देखेंगे तो ये निगेटिव है, क्योंकि यहाँ से इधर जा रहे हैं हम लोग और यहाँ से इधर जा रहे हैं तो ये वाला भी निगेटिव है.
तो जितना डिपार्चर हम लोग इधर गए उतना डिपार्चर हम लोग यहाँ पर वापस आ गए। तो एक क्लोज ट्रैवर्स में हमारा सम ऑफ द डिपार्चर इज ऑल्सो 0। तो किसी भी क्लोज ट्रैवर्स में सम ऑफ द लैटिट्यूड एंड सम ऑफ डिपार्चर इज ऑलवेज 0। तो ये हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि ये जो सर्वे लाइन के लाइंस की लेंथ हमने मेजर की और जो सर्वे लाइन का हमने हमारा बेयरिंग गिना हर एक लाइन का, तो एल कॉस थीटा एल साइन थीटा से लैटिट्यूड डिपार्चर निकाल सकते। और यदि क्लोज ट्रैवर्स है तो उस क्लोज ट्रैवर्स में हम लोग सम ऑफ द लैटिट्यूड 0 चेक कर सकते या सम ऑफ द डिपार्चर 0 चेक कर सकते। यदि ये सम नहीं आती है, इसका मतलब यह है कि आपके ट्रैवर्स के अंदर क्लोजिंग एरर है। सो हियर सपोज वी हैव स्टार्टेड विद दिस 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 और ये आखिरी का नहीं पहुंच गया पॉइंट अपना, यानी अपना ट्रैवर्स ऐसा बन रहा है समझ लो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइक दिस, सो मीन्स देयर इज क्लोजिंग एरर, सो दिस इज क्लोजिंग एरर। तो ये क्लोजिंग एरर कितनी रहेगी? अब ये केस में हमारा सम ऑफ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा लैटिट्यूड ये डिपार्चर, फिर ये वाला डिपार्चर ये वाला लैटिट्यूड, फिर ये वाला लैटिट्यूड ये वाला डिपार्चर, और फिर ये वाला डिपार्चर और ये वाला लैटिट्यूड। तो हम लोग ओरिजिनल लोकेशन पे नहीं पहुंचे, इतनी गैप आ गई। तो जो गैप है ये गैप हमारी so this is our gap. Now this gap is called as closing error. अब ये क्लोजिंग एरर यदि निकालना है तो ये क्लोजिंग एरर का भी एक लैटिट्यूड रहेगा इतना सा और इतना सा डिपार्चर रहेगा, जो कि ये सम ऑफ द लैटिट्यूड डिपार्चर में कैलकुलेट नहीं होगा। सो दिस इज द रिमेनिंग एरर। तो यदि हम लोग सम ऑफ द लैटिट्यूड हम लोग लेते हैं, सो इफ व्हेन वी कैलकुलेट सम ऑफ द लैटिट्यूड एंड इफ इट इज नॉन जीरो, जीरो नहीं है ये, तो उसकी कुछ तो वैल्यू आएगी आपकी, और सम ऑफ द डिपार्चर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी, कुछ तो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर एरर आ गई। तो ये सम ऑफ द लैटिट्यूड डिपार्चर जो है, इससे हम लोग एक क्लोजिंग एरर कितनी है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्लोजिंग एरर क्या हो जाएगी? सो इट इज वेरी सिंपल। सो क्लोजिंग एरर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये जो है सम ऑफ द लैटिट्यूड जितना भी आया उसका स्क्वायर प्लस सम ऑफ द डिपार्चर का स्क्वायर, क्योंकि ये रिमेनिंग एरर है तो इसका प्लस ये एरर को अंडर रूट निकालेंगे तो ये लाइन की लेंथ निकल सकती है, यानी ये है हमारी क्लोजिंग एरर। क्योंकि ये लाइन है, इसका लैटिट्यूड डिपार्चर ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसका अंडर रूट निकाल के हमको ये लेंथ निकल सकती है। सो इन दैट वे, सो अंडर रूट समेशन एल स्क्वायर प्लस समेशन डी स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग एरर। अब ये क्लोजिंग एरर्स यानी हम लोग ट्रैवर्स के अंदर क्लोजिंग एरर निकाल सकते हैं। सो वी कैन यूज दिस फार्मूला। सिमिलरली हम लोग अभी ये जो क्लोजिंग एरर आ गई इसकी डायरेक्शन यानी इसका थीटा कितना है वो भी निकाल सकते। सो हियर फॉर एनी एग्जांपल, ये जो लाइन है इसके लिए ये मेरा है डिपार्चर और ये है मेरा लैटिट्यूड, और विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ये वाला है मेरा एंगल थीटा, यानी दिस इज बेयरिंग। तो ये लाइन का ये वाला एंगल यदि मुझे मालूम है तो यहाँ पर मैं ये थीटा निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ? सो टैन थीटा इज इक्वल टू ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो डी अपॉन एल। सो डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड करेंगे तो टैन थीटा, यानी थीटा बोले तो बेयरिंग ऑफ द लाइन निकाल सकते। तो यहाँ पर भी हमारा ये जो क्लोजिंग एरर आ गई उसका भी बेयरिंग हम लोग निकाल सकते। सो क्लोजिंग एरर का जो थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा यहाँ पर। सो हियर वी विल राइट सम ऑफ द डिपार्चर डिवाइड बाय सम ऑफ द लैटिट्यूड। ये अलजेब्रिक सम है हमारी, तो सम ऑफ द लैटिट्यूड सम ऑफ द जितना बच गया थोड़ा सा हमारा ये क्लोजिंग एरर के लिए, इतना लैटिट्यूड कम पड़ रहा है, इतना डिपार्चर कम पड़ रहा है, तो ये सम ऑफ द डिपार्चर अपॉन सम ऑफ द लैटिट्यूड करेंगे तो वो होगा थीटा, टैन थीटा की वैल्यू, तो थीटा निकाल सकते हैं हम लोग। सो इन दैट वे, by using the latitude and departure value, we can calculate the closing error also. If the traverse is not closing, sum of the latitude departure is zero नहीं है आ रहा है, they are not zero, तो फिर उस पर हम लोग क्या निकाल सकते? क्लोजिंग एरर निकाल सकते। सो दैट क्लोजिंग एरर वी कैन कैलकुलेट एज अंडर रूट समेशन एल स्क्वायर प्लस समेशन डी स्क्वायर। और यदि हम लोग उसका डायरेक्शन निकालना चाहते हैं क्लोजिंग एरर की, तो क्लोजिंग एरर के लिए टैन थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग? समेशन ऑफ डिपार्चर डिवाइड बाय समेशन ऑफ लैटिट्यूड। तो इससे आपका थीटा निकाल सकते हैं हम लोग।
So in that way, so these two formula we can use for calculation of the closing error in the traverse, and we can also calculate the bearing of the closing error. Now this is one of the use. ये तो एक यूज हो गया हमारा लैटिट्यूड डिपार्चर का, कि हम लोग किसी भी क्लोज ट्रैवर्स में सम ऑफ द लैटिट्यूड जीरो है कि नहीं ये चेक कर सकते, और सम ऑफ द डिपार्चर जीरो है कि नहीं चेक कर सकते. यदि ये लैटिट्यूड डिपार्चर में थोड़ा थोड़ा फर्क आ गया, इसका मतलब उतनी क्लोजिंग एरर है, तो वो क्लोजिंग एरर हम लोग, क्लोजिंग एरर इज इक्वल टू समेशन ऑफ लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर स्क्वायर, इससे हम लोग निकाल सकते हैं. और वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द थीटा, दैट इज समेशन ऑफ डिपार्चर एंड लैटिट्यूड. तो ये एक यूज हो गया हमारा लैटिट्यूड डिपार्चर कैलकुलेट करने का. अब दूसरा यूज क्या है इसका? अब दूसरा यूज ये है कि हम लोग यहां पर समझेंगे अगेन. सो हियर सपोज फॉर एग्जांपल, सो दिस इज वन ऑफ आवर स्टेशन एंड दिस इज आवर वन ऑफ द ट्रैवर्स, और ये हमारा ट्रैवर्स है. सो दिस इज ए, दिस इज स्टेशन बी, दिस इज स्टेशन सी एंड दिस इज स्टेशन डी, और ये हमारा क्लोज ट्रैवर्स है. सो क्लोज ट्रैवर्स के लिए फिर से हमारा क्या हो जाएगा? सो हियर वी कैन कंसीडर दैट, सो दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज लैटिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज डिपार्चर. फिर ये वाला लैटिट्यूड है, ये वाला डिपार्चर है, ये वाला लैटिट्यूड है, ये वाला डिपार्चर है, और ये वाला इधर लैटिट्यूड है और ये वाला डिपार्चर है. यानी ए बी लाइन के लिए ये अपने को करना पड़ेगा लैटिट्यूड और ये डिपार्चर, ये डिपार्चर, ये लैटिट्यूड. लैटिट्यूड वर्टिकल होता है, हमेशा याद रखो, बिकॉज लैटिट्यूड इज नॉर्थिंग साउथिंग, और ये डिपार्चर हॉरिजॉन्टल होता है. सो दिस इज ऑल्सो डिपार्चर, दिस इज ऑल्सो डिपार्चर, और दिस इज लैटिट्यूड. तो हर एक लाइन का लैटिट्यूड डिपार्चर हम लोग निकाल सकते हैं. और जब यहाँ से हम लोग लैटिट्यूड, फिर डिपार्चर, डिपार्चर, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, डिपार्चर, डिपार्चर, लैटिट्यूड, तो पहुँच गए यहीं पे हम लोग. सो इन ए क्लोज ट्रैवर ऑलरेडी वी हैव सीन दैट, सो सम ऑफ द लैटिट्यूड इज जीरो एंड सम ऑफ द डिपार्चर इज जीरो. अब ये हमको पक्का पता चल गया. अब ये लैटिट्यूड कैसा निकालेंगे? सो ये ए बी लाइन की लेंथ और उसका बेयरिंग. सो बेयरिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल नॉर्थ डायरेक्शन, रिमेंबर. सो इन दिस केस दिस विल बी थीटा, इन दिस केस ये थीटा, इन दिस केस दिस इज थीटा, और फॉर दिस लाइन दिस इज थीटा. सो थीटा इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ साउथ वर्टिकल डायरेक्शन, रिमेंबर. दैट इज एक्चुअली द बेयरिंग ऑफ द सर्वे लाइन. बेयरिंग का मतलब एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन. सो this theta we have to use, and length of this line AB, so this is L1, suppose L2, then L3 and L4, ये हमको पता है. तो हम लोग L1 cos थीटा से लैटिट्यूड निकाल सकते, L1 sin थीटा 1 से डिपार्चर निकाल सकते. ये यदि थीटा 2 है तो L2, ये लैटिट्यूड निकालने के लिए cos थीटा 2, डिपार्चर के लिए L2 sin थीटा 2, यहाँ पे L3 cos थीटा 3 एंड डिपार्चर के लिए L3 साइन थीटा 3. ये लाइन के लिए क्या निकालेंगे? तो लैटिट्यूड निकालने के लिए L4 कॉस थीटा 4 और L4 साइन थीटा 4, तो डिपार्चर निकलेगा. तो सब निकाल सकते हैं हम लोग. अब फॉर एग्जाम्पल, अब हमको सर्वे करते करते क्या हो गया कि हमने यहां से A से B किया, B से C किया, C से D किया, तो इसके हमने बेयरिंग भी गिन लिए लाइन के, और इसकी लंबाई भी गिन ली. थियोडाइट से हमने कर लिया सर्वे. लेकिन क्या हो गया, ये ए डी लाइन के पास में यहाँ पे एक तालाब आ गया. सो दिस देयर इज, सपोज दिस इज वाटर बॉडी सपोज. तो एक ऐसा यहाँ पर वाटर बॉडी आ गई. तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये, और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हिली एरिया है, तो डी पॉइंट से ए पॉइंट का मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते आप. और ये डिस्टेंस दूर होने के कारण से यहाँ पे भी स्लोप है, तो यहाँ का रेंजिंग रॉड भी आपको यहाँ से आसानी से नहीं दिखाई दे रहा समझ लो. सो देयर इज सपोज ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर. सो यू आर अनेबल टू मेजर दिस लेंथ ऑफ दिस लाइन ए बी, एंड यू आर अनेबल टू मेजर द बेयरिंग ऑल्सो. तो सर्वे करते करते यदि क्लोज ट्रैवर्स के अंदर किसी भी 3 लाइन की लेंथ हमने गिन ली और उसका बेयरिंग भी गिन लिया, लेकिन चौथे लाइन के लिए लेंथ हमारे पास में नहीं है और बेयरिंग भी समझ लो नहीं है, या दोनों में से कुछ तो भी एक है या नहीं है. तो यदि ऐसा कंडीशन आती है तो ये सम ऑफ द लैटिट्यूड और सम ऑफ द डिपार्चर यदि जीरो होता है हमारा, तो हम लोग ये अननोन लाइन जो है जिसकी लेंथ मालूम नहीं, अननोन लेंथ, और ये लाइन का अननोन बेयरिंग, ये हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज वी विल गेट 2 इक्वेशन. यहां पे एक इक्वेशन मिलेगा
और ये दूसरा इक्वेशन मिलेगा। इसके अंदर भी हमारा अननोन क्या है, L4 अननोन है और θ4 अननोन है, और ये इक्वेशन भी L4 θ4 अननोन है, यानी चौथे लाइन की लंबाई और बेयरिंग अननोन है। यहाँ पर भी चौथे लाइन की लंबाई और बेयरिंग अननोन है, तो दो इक्वेशन मिल गए और दो अननोन है। तो आप सॉल्व कर सकते इसको, और आपको लंबाई और बेयरिंग जो चौथी लाइन है, ये वाली समझ लो लाइन एडी, इसका आप लोग निकाल सकते हो। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, दैट द मिसिंग डायमेंशन इन ए ट्रैवर्स, that you can calculate by using these two equation. Sum of the latitude is equal to 0 and sum of the departure is equal to 0, and that is again the one of the important use of the theodolite traversing. तो theodolite traversing से more accurate traversing कर सकते हैं। देन theodolite traversing के हम लोग independent coordinate निकालने के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और यदि किसी लाइन की लंबाई और बेयरिंग अननोन है एक आधे ट्रैवर्स में, और वो फील्ड में मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तो बाकी तीन लाइन का मेजर करके भी हम लोग मिसिंग लाइन का लेंथ और बेयरिंग ये निकाल सकते हैं। सो दैट इज एक्चुअली द यूज ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। तो ये कैसा करना है, इसके लिए हम लोग अभी यहाँ पर एक दो प्रॉब्लम यहाँ पर समझेंगे। सो यू विल मेक इट वेरी क्लियर। सो हियर द वन ऑफ द प्रॉब्लम इज गिवन दैट वी विल सॉल्व नाउ। सो द फाइंड द लेंथ एंड बेयरिंग ऑफ लाइन EA। तो अब यहाँ पर जो ट्रैवर्स है हमारा, उसके अंदर EA लाइन की लंबाई और बेयरिंग दोनों निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डाटा ऑफ द क्लोज ट्रैवर्स, रिमेंबर दिस इज क्लोज ट्रैवर्स, ये जरूरी है, क्लोज ट्रैवर्स, एंड कैलकुलेट द लेंथ एंड बेयरिंग ऑफ लाइन EA। अब ये यहाँ पर हमको ये डाटा दिया है, फील्ड में जाके हमने थियोडोलाइट सर्वे किया। तो क्या किया हमने, सो लाइन AB की लेंथ गिनी 204 मीटर और बेयरिंग है 87 डिग्री 30 मिनट। फिर BC का लंबाई है 226, बेयरिंग है 20 डिग्री 20 मिनट। फिर यहाँ पे CD का है लेंथ 187 और बेयरिंग है 280 डिग्री। यहाँ पे DE की है 192 और यह है 210 डिग्री 30 मिनट। लेकिन EA लाइन की लंबाई हम लोग फील्ड में जाके गिन नहीं सके, और EA लाइन का बेयरिंग भी हम लोग मेजर नहीं कर पाए, या फिर समय हो गया, शाम हो गई, तो ऑब्जर्वेशन रह गया बाकी, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, सो वी आर अनेबल टू मेजर द लेंथ एंड बेयरिंग। सो इन सच केस इफ द ट्रैवर्स इज क्लोज, सो अननोन लाइन की लेंथ और बेयरिंग, या फिर इस लाइन की लेंथ नहीं मालूम और इसका बेयरिंग नहीं मालूम, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, यानी लेंथ ऑफ वन लाइन एंड बेयरिंग ऑफ अदर लाइन, बिकॉज यू हैव टू इक्वेशन, सम ऑफ द लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ द डिपार्चर इज इक्वल टू 0। So here the length and bearing of same line is not known, so we will calculate now. अब इसको कैसे करना है, that we will solve now here. So first of all we have to understand what actually the traverse is. तो यहाँ पर आपको जो भी सॉल्व करना है उसके लिए ट्रैवर्स आपका बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे ट्रैवर्स है हमारा ABCDEA, ऐसा करके है ये क्लोज ट्रैवर्स। तो जो ऑर्डर से इसकी लाइन है, सर्वे लाइन, उसी ऑर्डर से आपको ये टेबल में लिखना जरूरी है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो फर्स्ट इसके अंदर आएगा सीरियल नंबर और ये आएगा लाइन। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 और 5 लाइन है मेरी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 लाइन है। सो पहली लाइन आएगी मेरी AB, सो दिस इज AB। फिर आएगी BC, फिर आएगा CD, फिर आएगा DE और फिर आएगा EA। सो रिमेंबर दिस ऑर्डर शुड बी एज पर दिस क्लोज ट्रैवर्स नेमिंग। जैसा क्लोज ट्रैवर्स का नेमिंग है उसी प्रकार से पहली लाइन AB, फिर BC, फिर CD, फिर DE, फिर EA, इसी प्रकार से होना चाहिए। सो दैट वे यू शुड प्रिपेयर दिस टेबल। तो सीरियल नंबर और लाइन हो गई। अब इसमें से हमारा जो गिवन डाटा जो है, इसमें से हमको लेंथ लिखना है। सो व्हाट इज नाउ लेंथ। अब लेंथ तो यहाँ पर AB की दी है हमारे पास, सो दिस इज 204। BC की लेंथ दी है हमारे पास 226, CD की दी है हमारे पास 187, देन DE की दी है 192 और EA की हमारे पास दी नहीं है, सो दिस इज अननोन। ये अननोन हो गया हमारा EA। नाउ सिमिलरली अब हमको यहां पर चाहिए बेयरिंग। सो दिस इज एक्चुअली द थीटा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन।
तो बियरिंग यहाँ पर अभी ए बी का देखो, ए बी का दिया है क्या बराबर, यस ए बी का डायरेक्टली दिया है, सो दिस इज 87 डिग्री 30 मिनट। देन बी सी का कितना दिया है 20 डिग्री 20 मिनट। देन फॉर सी डी द बियरिंग इज गिवन एज 280 डिग्री, फॉर डी द बियरिंग इज गिवन एज 210 डिग्री 30 मिनट एंड फॉर ई ए द बियरिंग इज नॉट गिवन। तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। अब एकदम सिंपल काम है हमारे पास में, यहाँ पे आपका ये ट्रैवर्स के डायरेक्शन का पूरा डाटा क्लोज हो गया, सो दिस इज फाइनल नाउ। तो ये क्लोज हो गया यहाँ पे अपना। अब आपको क्या करना है, नाउ कैलकुलेट यहाँ पर, अब यहाँ पे लैटिट्यूड कैलकुलेट करेंगे, लैटिट्यूड, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डिपार्चर। तो लैटिट्यूड होता है एल कॉस थीटा और डिपार्चर होता है एल साइन थीटा। तो एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा ये निकालना है। तो आपके पास एल है लेंथ और ये है थीटा बियरिंग, सो दिस इज एल एंड दिस इज थीटा। तो कैलकुलेट कर लो आप इसमें से फटाफट। सो अभी हमारे पास में है 7 डिग्री 30 मिनट, इसका कॉस इंटू 204, सो इट इज 8.898 प्लस 8.898, जो वैल्यू आ गई उतना प्लस माइनस आप लिख सकते हैं। सो 87.30 डिग्री का साइन और इंटू 204, तो ये हो गया 203.80। दिस इज ऑल्सो अगेन प्लस, साइन यहाँ पर रिमेंबर रखना है जो भी कैलकुलेशन आएगा आपका। फिर है हमारे पास में 20 डिग्री 20 मिनट, इसका कॉस और इंटू 226, सो 211.91, दिस इज अगेन प्लस, एंड इसका साइन 20 डिग्री का इंटू 226, सो 78.53 प्लस, फिर है 280 डिग्री, सो 280 डिग्री, इसका कॉस इंटू 187, सो दिस इज प्लस 32.47, और इसका साइन इंटू 187, सो दैट इज माइनस 184.16। अब ये साइन माइनस आ गई तो माइनस लिखना है। देन 210 डिग्री 30 मिनट, इसका कॉस इंटू 192, तो ये हो गया माइनस 165.43, और इसका साइन लेंगे इंटू 192 करेंगे, सो डिपार्चर, तो ये भी आ गया माइनस 97.44, और इसका तो मालूम ही नहीं आपको, ये ऐसे रहेगा। सो दिस इज लैटिट्यूड ऑफ ई ए, लैटिट्यूड ऑफ ई ए, एंड दिस इज डिपार्चर ऑफ ई ए, लैटिट्यूड ऑफ ई ए, लैटिट्यूड डिपार्चर ऑफ ई ए। तो ये हम लोग इस प्रकार से लैटिट्यूड डिपार्चर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमको पता है कि सम ऑफ द लैटिट्यूड शुड बी 0 और सम ऑफ द डिपार्चर शुड बी 0, लेकिन अब ये 0 आती है क्या, देखो क्योंकि यहाँ पे एक लाइन का मालूम नहीं है तो ये 0 नहीं आएगी, तो यहाँ पर सम ले लो। सो वी हैव टू मेक सम, सो दिस इज समेशन, समेशन में अभी हमारे जो भी वैल्यू आ गई, सो दिस इज 8.89 प्लस 211.91 प्लस 32.47 माइनस 165.43। तो जो साइन है वो साइन के हिसाब से मैंने अल्जेब्रिक सम कर दिया, सो इट इज 87.84। ये प्लस वैल्यू आ गई हमारी लैटिट्यूड की, समेशन लैटिट्यूड, और समेशन डिपार्चर इसका टोटल करेंगे अल्जेब्रिक सम, सो 203.80 प्लस 78.53 माइनस 184.16 माइनस 97.44। तो जैसी वैल्यू है साइन है वो साइन पकड़ के मैंने यहाँ पर निकाला, सो दिस इज 0.73। सो दिस इज समेशन ऑफ डिपार्चर। तो ये लैटिट्यूड, ये प्लस है, ये दोनों भी प्लस आ गए। सो दिस इज समेशन ऑफ लैटिट्यूड, दिस इज समेशन ऑफ डिपार्चर। तो अब आपको क्या करना है, यदि ये सम हमको 0 चाहिए तो ये जो लाइन है इसका लैटिट्यूड इसके अपोजिट साइन का लगेगा,
और ये डिपार्चर यदि जीरो चाहिए सम ऑफ द डिपार्चर, तो ये जो रिमेनिंग लाइन है ई ए लाइन का डिपार्चर इसके अपोजिट साइन का लगेगा, तो वही हम लोग कर सकते हैं. सो यू कैन राइट डाउन हियर. सो हियर इन दिस केस समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू कितना आया हमारा, प्लस आ गया 87.84 और समेशन ऑफ डिपार्चर आ गया हमारा प्लस 0.73. तो आपको इस पे से ही आप अभी ये लाइन का लैटिट्यूड कितना हो जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला, तो ये जीरो आ जाएगा फिर यहाँ पे टोटल. तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते लैटिट्यूड ऑफ लाइन ई ए इज इक्वल टू क्या है, इसके माइनस करने का, तो ये यहाँ पर करना पड़ेगा माइनस 87.84, क्योंकि ये सम ऑफ द लैटिट्यूड प्लस आया तो साइन चेंज कर दी यहाँ पे, तभी जाके हमारा ये माइनस की वैल्यू रहेगी, तो फिर ये सम जीरो आएगा बराबर. उसी प्रकार से डिपार्चर ऑफ लाइन ई ए ये है, इसके भी माइनस, तो दिस इज ऑल्सो माइनस 0.73. तो जब ये माइनस 87.84 यहाँ रखेंगे तो ये सम ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे वैसे ही माइनस 0.73 रखेंगे तो ये भी सम जीरो हो जाएगी. है ना, हम लोगों ने डायरेक्ट लैटिट्यूड सम ऑफ द लैटिट्यूड सम ऑफ द डिपार्चर कैलकुलेट करो और उसकी साइन चेंज कर देंगे, तो वही आपका लैटिट्यूड ऑफ मिसिंग लाइन और डिपार्चर ऑफ मिसिंग लाइन हो जाएगा. सो दिस इज वेरी सिंपल. तो ये हमारा लेंथ निकालना है भी हमको और बेरिंग निकालना है, तो लेंथ इस पे से निकाल सकते हैं हम लोग. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट लेंथ. सो लेंथ इज इक्वल टू समेशन ऑफ ये, यानी ये लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस डिपार्चर स्क्वायर का अंडर रूट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे है हमारा 87.84, ये माइनस है इसका स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस 0.73 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये लेंथ निकल जाएगी हमारी, लेंथ ऑफ ई ए, यानी ई ए लाइन की लेंथ यहाँ निकालेंगे हम लोग. सो इट इज़ वेरी सिंपल, 87.84 का स्क्वायर और 0.73 का स्क्वायर और दोनों को ऐड करके इसका अंडर रूट निकालना है, तो ये आ गया 87.84. सो दिस इज द लेंथ ऑफ लाइन ई ए, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये लाइन का. और अब बियरिंग निकालना है, तो हमने इसके पहले भी देखा है tan थीटा इज इक्वल टू डिपार्चर डिवाइडेड बाय लैटिट्यूड. तो ई ए लाइन का डिपार्चर कितना है, माइनस 0.73 और ये है 87.84. माइनस माइनस दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो tan थीटा है, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स करके ये वैल्यू निकाल सकते. सो 0.73 डिवाइडेड बाय 87.84 और इसका tan इनवर्स निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री 28 मिनट 34 सेकंड. तो ये हो गया आपके लाइन ई ए का बेयरिंग ऑफ ई ए. सो दिस इज द अनदर आंसर. तो इतना सिंपल है, आपको सिर्फ गिवन डाटा सिस्टमेटिकली टेबल में भरना है, उस पे से एल साइन थीटा एल कॉस थीटा करके डिपार्चर लैटिट्यूड निकालना है और सम ऑफ द लैटिट्यूड सम ऑफ द डिपार्चर जीरो चेक करना है. यदि जीरो नहीं है तो जितना डिफरेंस रह गया उसकी साइन चेंज करके वो मिसिंग लाइन का बेरिंग लैटिट्यूड डिपार्चर हो जाएगा. यानी मिसिंग लाइन का लैटिट्यूड और मिसिंग लाइन का डिपार्चर हम लोग साइन चेंज करके निकाल सकते हैं. फिर उस पे से एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो वो लाइन की लेंथ निकल जाएगी, और tan थीटा इज इक्वल टू डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड करेंगे तो वो लाइन का बेरिंग भी निकल जाएगा. तो अब मुझे मिसिंग लाइन का लेंथ और बेरिंग पता चल गई, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कैलकुलेटिंग द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर. So for this now we will solve again another important problem. So here we will go for next problem. So it is very simple now. So here find the length and bearing of line AB from the following given data of the closed traverse. So remember here is again closed traverse है हमारा. So okay, अभी हमको निकालना है लाइन एंड लेंथ एंड बेरिंग ऑफ AB. तो यहाँ पे AB लाइन तो पहले दी नहीं है, एंड दिस इज द डाटा गिवन. Line BC length is 66.25, bearing is 250 degree 45 minute. Line CD length is 330.20 and bearing is 15 degree 20 minute. Then line DA, so his length is 150 meter and bearing is 270 degree 15 minute. So like way, तो ये तीन लाइन का लेंथ और बेरिंग हमने फील्ड में मेजर कर लिया.
अब हमको उस पे से जो लाइन ए बी है जिसका हमने गिना ही नहीं अभी फील्ड में, उसका निकालना है. सो फर्स्ट रूल अगेन वी हैव टू फॉलो इज वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज क्लोज ट्रैवर्स. तो क्लोज ट्रैवर्स हमारा एक्चुअली क्या हो जाएगा, ए बी सी डी और ए, ये होने वाला है हमारा ट्रैवर्स का नाम. सो फिल सीरियल नंबर एंड लाइन. तो सबसे पहली लाइन हो जाएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लाइनें हमारी. सो फर्स्ट लाइन इज ए बी, देन बी सी, देन सी डी, देन डी ए. तो ये नाम जो लिखना है, ये नाम आपको ये ट्रैवर्स के नाम से लिखना है, ये इसके हिसाब से नहीं लिखना है. जो टेबल में दिया है उसका बाद में यूज करना है. फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन लाइक दिस. सो अब लेंथ लिख लो इसकी. तो ए बी की लेंथ यहां पर दी है क्या, नहीं दी है, सो कीप इट ब्लैंक. बी सी की लेंथ दी है 66.25. देन सी डी की लेंथ 330.20 और डी ए की लेंथ 150. सो वी आर कंप्लीटेड. तो यहां पे आपका ये क्लोज ट्रैवर्स कंप्लीट हो जाएगा. सो आई विल ड्रॉ दिस लाइन. तो यहां पे टेबल कंप्लीट हो गया. अब यहां पर हमको इसका बेयरिंग लिखना है. सो हियर वी विल टेक बेयरिंग. अब बेयरिंग ए बी का भी दिया नहीं है, वो तो निकालना ही है. अब बी सी का दिया है क्या, देखो. सो बी सी का डायरेक्ट दिया है, सो दैट इज 250 डिग्री 45 मिनट. फिर सी डी का दिया है, सी डी का दिया है 15 डिग्री 20 मिनट. सो इट इज 15 डिग्री 20 मिनट. फिर डी ए का दिया है 270 डिग्री 15 मिनट. तो ये नाम एक जैसे है, यहाँ पर भी एक जैसे नाम है, तो डायरेक्ट बेयरिंग हम लोग यहाँ पे ऐसे कैसे लिख रहे हैं. सो दिस इज 270 डिग्री 15 मिनट. तो ये बेयरिंग आ गया उसका. अब यहाँ से हम लोग लैटिट्यूड यहाँ पे निकाल सकते हैं. सो दिस इज एल कॉस थीटा मीन्स लैटिट्यूड, और दिस इज एल साइन थीटा, सो दिस इज डिपार्चर. सो इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट लैटिट्यूड एंड डिपार्चर. तो ए बी लाइन के लिए तो हमारे पास में वैसे भी अभी है नहीं. सो दिस विल ब्लैंक एंड ये हो गया लैटिट्यूड ऑफ ए बी एंड दिस इज डिपार्चर ऑफ ए बी. अब बाकी लाइन का निकाल सकते हैं हम लोग. सो वी विल कैलकुलेट दैट. सो हियर 250 डिग्री 45 मिनट इसका कॉस लेना है और इंटू 66.25. तो ये हो जाएगा -21.84. और इसी एंगल का यदि साइन लेंगे और इंटू करेंगे 66.25, तो ये हो जाएगा डिपार्चर -62.54. फिर दूसरे लाइन के लिए, दूसरे लाइन का बेयरिंग है 15 डिग्री 20 मिनट. इसका कॉस लेंगे और इंटू 330.20 उसकी लेंथ है, तो ये हो गया 318.44 प्लस है ये. रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर द साइन. उसी प्रकार से 15.20 का साइन लेंगे इंटू 330.20, सो यू विल गेट डिपार्चर दैट इज 87.31 प्लस है ये. साइन वी हैव टू रिमेंबर. फिर तीसरे लाइन का है 270 डिग्री 15 मिनट. इसका कॉस लेंगे और इंटू लंबाई है 150, सो एल कॉस थीटा मिलेगा हियर प्लस 0.65 और इसका ही साइन लेंगे इंटू 150 करेंगे, तो ये हो गया -149.99. तो ये हो गया डिपार्चर. तो ये हमने कैलकुलेट कर लिए. अब इस पर से हम लोग यहाँ पर समेशन लैटिट्यूड और समेशन डिपार्चर, समेशन लैटिट्यूड समेशन डिपार्चर, ये दोनों भी निकाल सकते हैं. अब ये लाइन का मालूम नहीं है तो अभी उसको वैसे ही रखो. सो यू कैन मेक दिस. सो दिस इज -21.84 माइनस प्लस 318.44 प्लस 0.65, तो ये हो गया 297.25. ये सम ऑफ द लैटिट्यूड हो गया. और सम ऑफ द डिपार्चर के लिए 62.54, दिस इज माइनस प्लस 87.31 माइनस 149.99 और ये हो गया माइनस 125.22. सो दिस इज
सम ऑफ द लैटिट्यूड एंड सम ऑफ द डिपार्चर। अब हमको ये मालूम है कि ये सम ऑफ द लैटिट्यूड 0 चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट वैल्यू, यदि लाइन ए बी का लैटिट्यूड रहता था तो ये टोटल सम 0 आती थी, यानी ये 297.25 की साइन चेंज कर दो माइनस, और यहाँ पे लैटिट्यूड लिख दो उसका, तो वो ये सम 0 आ जाएगी बराबर। और वैसे डिपार्चर का करेंगे, यहाँ पर माइनस 125.25 आ गया सम ऑफ द डिपार्चर। अब ये 0 आने के लिए क्या हो रहा है, इसके अपोजिट वैल्यू यहाँ पर रहती थी तो सम ऑफ द डिपार्चर 0 आता था, तो हम लोग इसका उल्टा करके यहाँ लिखेंगे। सो एक्चुअली वी विल राइट डाउन हियर, तो सम ऑफ द लैटिट्यूड जो हमने कैलकुलेट किया अभी 3 लाइन का जो आया वो आया 297.25, और सम ऑफ द डिपार्चर जो कैलकुलेट किया वो आ गया माइनस 125.22। तो अभी लाइन ए बी का कितना रहेगा, फिर इसकी दोनों के साइन अपोजिट कर दो। सो हियर लैटिट्यूड ऑफ ए बी ये हो जाएगा, इसके अपोजिट कर दो साइन उसकी माइनस, तो माइनस 297.25, इसकी साइन अपोजिट कर दी हमने। और वैसे डिपार्चर ऑफ ए बी निकालना है तो इसकी साइन उल्टी कर दो, तो माइनस है यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा 125.22। तो ये लैटिट्यूड डिपार्चर निकल गए, और इसी पे से हम लोग लेंथ भी निकाल सकते। सो दैट इज लेंथ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये 297.25, ये माइनस है इसका स्क्वायर, प्लस 125.22 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। सो दिस लेंथ ए बी इज नोन, तो ये निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इसका स्क्वायर कर लो और 297.25 का स्क्वायर कर लो, दोनों की एडिशन करके उसका अंडर रूट निकाल लो। सो इट इज़ 322.54 मीटर। तो लाइन ए बी की लंबाई इतनी निकल गई। और यदि लाइन ए बी का बेरिंग चाहिए, सो tan थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ डिपार्चर माइनस समेशन ऑफ लैटिट्यूड, यानी ये वाला डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी डिवाइडेड बाय डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी, यानी डिपार्चर है हमारा 125.22 डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी, और लैटिट्यूड ऑफ लाइन ए बी है 297। तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा। सो दैट थीटा इज इक्वल टू 125.22 डिवाइडेड बाय 297.25, और इसका इन्वर्स tan इन्वर्स ले लो, तो ये हो गया मेरा 22 डिग्री 50 मिनट 37 सेकंड। सो दिस इज बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। सो इस प्रकार से हम लोग बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी निकाल सकते। सो गाइज हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट बाय यूजिंग द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर कंसेप्ट we are able to calculate the length and bearing of missing line in a closed traverse। और ऐसे कई सारे सिचुएशन आते हैं फील्ड में कि जहाँ पे किसी लाइन की लेंथ या फिर किसी लाइन की बेयरिंग हम लोग गिन नहीं सकते। अब सिचुएशन अलग अलग हो सकती है कि दोनों लाइन के लेंथ और बेयरिंग मालूम नहीं है, या फिर एक लाइन का लेंथ मालूम नहीं, दूसरे का बेयरिंग मालूम नहीं है, या फिर किसी भी दो लाइन का बेयरिंग मालूम नहीं है। तो ऐसी तीनों भी सिचुएशन आएंगे, तो आपको इक्वेशन बनाना है। सिर्फ इस पे से दो इक्वेशन बनेंगे, सम ऑफ द लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0, सम ऑफ द डिपार्चर इज इक्वल टू 0, और वो दोनों इक्वेशन में से जो भी वैल्यू अननोन होगी वो आपकी इक्वेशन सॉल्व करके निकल जाएंगी। एंड दैट वे वी आर यूजिंग द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर कंसेप्ट इन थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग। सो वी हैव टू अगेन see that whatever the things I have seen, that is the serial order of the traversing name, that is important, क्योंकि लाइन की ऑर्डर आपकी ए बी बी सी सी डी 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 ए इस प्रकार से ही होनी चाहिए। और जो गिवन डाटा जो है आपका वो भी लाइन ए बी का बेयरिंग या उसका फोर बेयरिंग है कि बैक बेयरिंग है, ऑल दैट वी हैव टू मेक इट क्लियर एंड देन वी कैन कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स। सो टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली we will again solve some of the few more problems. So we will just try it in the next lecture, so that we will or we can continue in this. They are very easy, but in next lecture we can also have that calculation. So
this is one of the problem. Again we will go for next small problem where there is little bit tricky data is given. So how this tricky data can be handled, and then same procedure we can follow. So we will solve little bit faster here. So here the following observation were taken from the station P and Q. तो यहाँ पर P और Q पे थियोडलाइट रख के ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं, दैट इज गिवन. एंड लेंथ एंड बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी एंड ऑल्सो द एंगल पी ए बी और एंगल क्यू ए बी ये कैलकुलेट करना है हमको. सो ये इसमें दिया है कैलकुलेट लेंथ एंड बेयरिंग ऑफ ए बी लाइन का लेंथ एंड बेयरिंग निकालना है. सो लेंथ, सो ए बी ये निकालना है और इसका बेयरिंग भी निकालना है. सो थीटा ए बी ये भी निकालना है और एंड ऑल्सो द एंगल पी ए बी. सो एंगल पी ए बी दिस इज ऑल्सो अननोन एंड एंगल क्यू बी ए ये भी निकालना है हमको. यानी दो चीजें, और यहाँ पर दोनों भी अननोन है और इतना डाटा दिया है थियोडलाइट ट्रैवर्सिंग का. सो नाउ वी विल फिल दिस डाटा हियर. तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा फिर से हमको ऐसे केस में यदि ये सिंपल सीधा सीधा डाटा दिया नहीं यहाँ पर, तो उस केस में हमको ध्यान में रखना है कि हमको फॉर्मुलेट करना है ट्रैवर्स का ड्राइंग. तो ट्रैवर्स का ड्राइंग करने के लिए अब यहाँ पर स्टेशन पी से उन्होंने रीडिंग लिया ए के तरफ और उसका बेयरिंग है साउथ डिग्री 60 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, यानी ये साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में है. तो साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में आपको लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी. तो सपोज यहाँ पर हमारा स्टेशन पॉइंट पी आता है, तो साउथ वेस्ट यानी ये वाला कंपोनेंट आ गया. साउथ से लेके वेस्ट की तरफ 60 डिग्री का एंगल है, यानी पी ए लाइन हमारे ऐसी है. सो दिस इज पी एंड दिस इज ए और ये वाला एंगल हमको इतना दिया है 60 डिग्री 30 मिनट का. तो पी से हमने ए के तरफ लिया, उसकी लंबाई आ गई हमारी 125 और साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में हमारी लाइन है. फिर पी से क्यू लिया तो वो है नॉर्थ में 30 डिग्री 30 मिनट. तो पी से लेके क्यू और नॉर्थ से एंगल मैंने यहां पर है. सो ये वाला एंगल इतना एंगल हो गया 30 डिग्री 30 मिनट का और ये लाइन की लंबाई होगी 200 मीटर. सो दिस स्टेशन इज नाउ क्यू. ये हो गया ए, ये हो गया क्यू. अब यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शन नहीं निकाला थोड़ा सा, बट दिस इज ए, पी से ए और ये पी से क्यू, इतना मैंने प्लॉट कर लिया ये वाला. अब क्यू से बी है 150.5 और उसका कोऑर्डिनेट है, क्वाड्रेंट है नॉर्थ वेस्ट. तो नॉर्थ वेस्ट बोल तो ये वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा. तो ये यहाँ से लाइन ऐसी आ जाएगी ये वाली. सो ये नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट, इधर का एंगल दिया है हमको 50 डिग्री 15 मिनट का और ये हो जाएगा पॉइंट बी और फिर ये लाइन हो गई हमारी ए बी. तो ए बी लाइन की लेंथ हमको निकालना है और उसका बेयरिंग भी हमको मालूम नहीं है. और ये क्यू बी का दिया है हमको 150. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि यदि ऐसा अटरेंडम डाटा दिया है तो आपको पहले ट्रैवर्स का ड्राइंग बना लो आप, ताकि आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि ट्रैवर्स का नेमिंग कैसे करना है. तो अब यहाँ पे ट्रैवर्स हमको अननोन लाइन कौन सी चाहिए, ए बी. तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए बी क्यू पी ए. तो हमारा जो ट्रैवर्स हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा ए बी के बाद में फिर क्यू के बाद में पी और पी के बाद में ए. तो ये हो जाएगा मेरा ट्रैवर्स का नाम. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. तो व्हेन देयर इज अ अल्टरनेट डाटा, अटरेंडम डाटा इज गिवन, सो वी शुड प्रिपेयर फर्स्ट द स्केच ऑफ दैट ट्रैवर्स. ट्रैवर्स का स्केच प्लॉट करने से किस सीरियल ऑर्डर से आपको ट्रैवर्सिंग किया है वो पता चल जाएगा. सो वी आर डूइंग नाउ ए बी, इस प्रकार से ट्रैवर्सिंग किया है हमने. तो अब ये डाटा पे से हम लोग यहाँ पर टेबल भर सकते हैं. सो फर्स्ट इज सीरियल नंबर, लाइन कितनी हमारी 4 है, 1 2 3 4 और लाइन का नेम अब यहाँ से आएगा. पहला नेम आएगा ए बी, ट्रैवर्स का नेम है. दूसरा आएगा बी क्यू, तीसरा आएगा क्यू पी और चौथा आएगा पी ए. तो ये नाम आएंगे लाइन के. अब इसके हिसाब से बियरिंग लिखना पड़ेगा. लेंथ, तो लेंथ तो हमको ए बी की दी नहीं हमारे पास में, निकालना है.
फिर बी क्यू और क्यू बी बोले तो सही क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150.5। क्यू पी क्यू और क्यू पी का सही क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 और पी ए का 125 है। सो दिस इज डायरेक्टली गिवन। तो ये डाटा जानबूझ के गड़बड़ हो सकता है क्योंकि मैंने थियोडाइट पी पे रखा और पी से ए का रीडिंग लिया और पी से क्यू का लिया और फिर क्यू पे रख के बी का ले लिया, बस। तो दो ही जगह थियोडाइट रखा हमने। सो डाटा इज वेरी लेस और ए बी लाइन हमको निकालना है, उसको मेजर ही नहीं किया हमने फील्ड में। सो देयरफॉर अब यहाँ पे हम लोग को बेयरिंग के समय भी और ध्यान रखना है। सो इन केस ऑफ बेयरिंग, ए बी लाइन का बेयरिंग तो वैसे भी निकालना ही हमको। सो दिस इज अननोन। अब बी क्यू हमको दिया है क्यू बी का, तो बी क्यू का क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट होगा क्योंकि ये फोर बेयरिंग है तो इसका बैक बेयरिंग करना पड़ेगा क्योंकि क्यू बी के जगह हमने यहाँ पे बी क्यू लिखा। तो बी क्यू बोले तो यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा हमारा साउथ, नॉर्थ का साउथ करना पड़ेगा, 50 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, ऐसा आ जाएगा ये। और क्यू पी, तो पी क्यू का दिया है तो क्यू पी का चाहिए तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ पे साउथ वेस्ट हो जाएगा। सो दिस इज साउथ 30 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के जगह वेस्ट हो जाएगा। तो ये क्यूपी का बेयरिंग हमने लिख दिया वहां से। देन पीए का तो डायरेक्टली दिया है तो इतने ले सकते हैं हम लोग। तो पीए का जो दिया है वही लेना पड़ेगा क्योंकि लाइन पीए और यहां पर भी पीए का दिया है। सो दिस इज साउथ 60 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमको पहले ट्रैवर्स का नाम पहले बनाना है, ये प्लॉटिंग पे से प्लॉटिंग करना है स्केच इसका जो बियरिंग और दिया है उसके हिसाब से। एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं लिया तो चलेगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते इसको। और फिर ट्रैवर्स का नाम फाइनल हो गया आपका और फिर उसके हिसाब से ये लाइन लिखी आपने, फिर लेंथ और बेयरिंग आपको लिखना है गिवन डाटा। तो अब यहाँ पे आपका ये डाटा पूरा हो गया। सो आई विल क्लोज दिस टेबल हियर। और अब हमको आगे इसके अंदर लैटिट्यूड डिपार्चर निकालना है। सो हियर एल कॉस थीटा और यहाँ पे एल साइन थीटा। अब काम आसान है हमारा। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा अभी, तो लैटिट्यूड ऑफ ए बी और ये डिपार्चर ऑफ ए बी ये अननोन है हमारे, और बाकी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर एक और नई चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमको ये बेयरिंग जो है ना ये रिड्यूस बेयरिंग फॉर्मेट में दिया है। सो दिस इज क्वाड्रेटर बेयरिंग और रिड्यूस बेयरिंग। तो ये एंगल थीटा उतना ही रहेगा लेकिन लैटिट्यूड डिपार्चर की साइन हमको ये साउथ वेस्ट और इसके हिसाब से लिखनी पड़ेगी। तो जब नॉर्थ होता है तो लैटिट्यूड प्लस होता है और साउथ होता है तो लैटिट्यूड माइनस होता है। ये तो हमने इसके पहले भी देखा है। सो नॉर्थ इज पॉजिटिव, साउथ इज निगेटिव, और वैसे ईस्ट पॉजिटिव वेस्ट निगेटिव। तो जो यहाँ पर क्वाड्रेंट होंगे उसके हिसाब से लैटिट्यूड डिपार्चर के साइन आपको तय करने पड़ेंगे। तो यहाँ तो हमको समझ में आएगा, यहाँ पे साउथ है मतलब लैटिट्यूड निगेटिव आएगा, यहाँ पर भी साउथ है तो निगेटिव आएगा, साउथ है तो निगेटिव आएगा, यहाँ पर वेस्ट है तो डिपार्चर भी निगेटिव आएगा, यहाँ पर वेस्ट है तो डिपार्चर निगेटिव आएगा, यहाँ पर वेस्ट है डिपार्चर निगेटिव आएगा। तो ये साइन आपको इस केस में इस प्रकार से पहले ही लिख देना पड़ेगा बिकॉज इट इज गिवन इन क्वाड्रेटल बेयरिंग फॉर्मेट। ये बेयरिंग होल सर्कल बेयरिंग में नहीं है, क्वाड्रेटल बेयरिंग में। सो नाउ हियर वी आर कंप्लीटेड। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो हियर 50 डिग्री 15 मिनट इसका कॉस लेंगे और 150.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया लैटिट्यूड 96.23 और इसी एंगल का साइन लेंगे और इंटू 150.5 करेंगे तो ये हो जाएगा डिपार्चर माइनस ही रहेगा ये 115.71। साइन मैंने पहले ही तय कर लिए यहाँ पे। फिर बाद में 30 डिग्री 30 मिनट ये जो एंगल है इसका कॉस लेंगे इंटू 200 लेंथ। सो दिस इज 172.32। देन ये एंगल का साइन इंटू 200 सो दिस इज 101.50। फिर तीसरे लाइन का 125 है, उसका एंगल है 60 डिग्री 30 मिनट तो इसका कॉस लेंगे इंटू 125 करेंगे तो ये हो गया 61.55। और इसी प्रकार से इसका हमने साइन लेंगे और इंटू 125 सो दैट इज 108.79। और सबके सब माइनस है, रिमेंबर यहाँ पर ध्यान में रखना है हमको। सो लाइक वे नाउ वी हैव कैलकुलेटेड। अब हम लोग इसका सम ऑफ द लैटिट्यूड करेंगे
और सम ऑफ द डिपार्चर करेंगे. सो दिस इज सम ऑफ द लैटिट्यूड. तो सम ऑफ द लैटिट्यूड कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे. सो 96.23 दिस इज माइनस 172.32 माइनस 61.55. Like 96.23 this is minus 172.32 माइनस 61.55. तो ये आ गया माइनस 330.10 और उधर से आ गया 115.71. दिस इज माइनस 101.5 माइनस 108.79. सो इट इज़ माइनस 326. तो ये सम ऑफ लैटिट्यूड सम ऑफ डिपार्चर दोनों भी माइनस आ गए. इसका मतलब क्या है कि ये इसका जो लैटिट्यूड है ये माइनस है. इसका मतलब कहाँ पर है वो लैटिट्यूड. तो ये ए बी लाइन का जो लैटिट्यूड है वो प्लस हो जाएगा इसके. सो फॉर लाइन ए बी सो लैटिट्यूड ऑफ लाइन ए बी ये हो जाएगा 330.10 प्लस हो जाएगा. ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा. और डिपार्चर ऑफ ए बी ये माइनस आ गया तो यहां पर भी ये प्लस आ जाएगा. सो दिस इज 326.00. तो ये हो गया लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ ए बी. यानी इसके दोनों भी कोऑर्डिनेट प्लस आ रहे हैं. इसका मतलब लाइन ए बी का जो भी आ रहा है ये प्लस आ रहा है. मतलब यहाँ पर ये लाइन जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी नॉर्थ. ये प्लस है मतलब नॉर्थ है और ये ईस्ट है. तो ये हमारा बी पॉइंट थोड़ा सा ऐसा इधर रहेगा. यानी ये डायग्राम हमारा बी पॉइंट हमारा इधर रहेगा ऐसा. सो आई हैव टू स्किप दिस लाइन. और ये क्यू बी यहाँ तक रहेगा सिर्फ. और ये जो लाइन है अभी ए बी ये से लेके बी तक सो दिस इज लाइन ए बी. और ए बी का ये वाला बेरिंग निकलेगा हमारा. और ये लेंथ हमको मालूम नहीं है लेकिन ये नॉर्थ और ईस्ट ये वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. इतना हमको पक्का चल गया. सो दैट इज़ वेरी इजी. तो अब लोग यहाँ पर हम लोग इसका लेंथ भी निकाल सकते हैं. लेंथ निकालना है तो इसका 330.10 इसका स्क्वायर और 326 इसका स्क्वायर दोनों का प्लस करके उसका अंडर रूट निकालो तो ये होगा 463.94. तो ये जो लंबाई है ये आ गई हमारी लेंथ ए बी 463.94. So I think there was one mistake we have done. So BQ के लिए हमने नॉर्थ का साउथ किया. यहाँ पे वेस्ट का ईस्ट करना पड़ेगा. सो हियर BQ के लिए ये वाला हमको ईस्ट चाहिए. सो देयर इज मिस्टेक. सो वी हैव टू cancel all these calculations. We have to recheck that. So यहाँ पर ये BQ का यहाँ पर QB है तो ये नॉर्थ और वेस्ट है तो साउथ और ईस्ट आना चाहिए यहाँ पे BQ के लिए. So for BQ this should be साउथ एंड ईस्ट. ये गलत कर दिया हमने यहाँ पर. तो ये हमारी गलती हो गई यहाँ पे. तो ये ईस्ट कर लेंगे यहाँ पर सिर्फ. सो दिस इज BQ के लिए साउथ और ईस्ट चाहिए. यहाँ पर साउथ और ईस्ट चाहिए. इसका मतलब ये कंपोनेंट प्लस रहेगा तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी यहाँ पर. सो वी विल मेक इट करेक्शन. तो ये इसलिए हमको ध्यान में रखना है कि यदि आपका कोऑर्डिनेट गलत हो गया. अभी यहाँ पर मेरा लाइन का डायग्राम मैंने पहले ऐसा बनाया था. अब ऐसा आने की वजह से मुझे शक आया
तो मैंने उसको चेक किया, तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर QB का ये नॉर्थ वेस्ट है, तो यहाँ पे मैंने साउथ ईस्ट लिखना चाहिए। ईस्ट मतलब ये डिपार्चर पॉजिटिव रहेगा, पहले हमने गलती से निगेटिव लिख दिया था उसको, तो ये डिपार्चर की टोटल चेंज हो जाएगी यहाँ पे हमारी। तो हम लोग उसको सुधारेंगे अभी। 115.71 प्लस है ये माइनस 101.50 माइनस 108.79, तो अब आएगा बराबर हमारा ये, तो ये आ रहा है हमारा BQ का हमने चेक किया बराबर यहाँ पर, और QP का भी हमारा साउथ और वेस्ट आएगा, तो साउथ और वेस्ट बराबर है ये, तो ये बराबर है निगेटिव दोनों भी। और PA का है साउथ और वेस्ट, तो ये भी साउथ और वेस्ट बोलते निगेटिव दोनों भी। तो अब ये हमारा बराबर है यहाँ पर। सो हियर द 50 डिग्री BQ, तो 50 डिग्री 15 मिनट, 50 डिग्री 15 मिनट जो है इसका साइन लेंगे इंटू 150.5 करेंगे, तो प्लस आ रहा है 115, सो 115.71 माइनस 101.50 माइनस 108.79, सो माइनस 94.58 आ रहा है हमारा ये। तो यहाँ पे अभी लैटिट्यूड ऑफ AB ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये तीनों भी वैल्यू माइनस है हमारे यहाँ पर। और डिपार्चर ऑफ AB ये भी यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस आएगा, तो यानी ये प्लस बोले तो ये नॉर्थ में है और ये है ईस्ट में, तो लाइन ऐसी आएगी हमारी, ये वाली आएगी, लेकिन उसकी वैल्यू हमारी ऐसी आनी चाहिए। और अब उस पे से हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं, और उसका बेयरिंग निकालना है तो बेयरिंग भी निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड। तो इस प्रकार के कैलकुलेशन करके हम लोग उसके लेंथ और बेयरिंग दोनों निकाल सकते। सो हियर द वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट whatever the data is given, accordingly you have to plot the traverse, then you have to decide the serial order of the line length, line name, and then you have to prepare this table, then you can calculate length, latitude and departure, and accordingly here again the bearing are given in quadrilateral bearing format, so we have to check the sign of the latitude and departure। तो यहाँ पे साउथ है तो माइनस और ईस्ट है तो प्लस, साउथ है तो माइनस, वेस्ट है तो माइनस, और यहाँ पर भी साउथ है तो माइनस और वेस्ट है तो माइनस। सो लाइक वे वी हैव टू फील द साइन, सो इन दैट वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो देर इज अगेन वन फ्यू प्रॉब्लम वॉज देयर, सो दैट वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने यहाँ पर ये यूज़ देखा है कि मिसिंग लाइन का लेंथ और बेयरिंग यदि है तो वो थियोडाइट ट्रैवर्स में हम लोग लैटिट्यूड डिपार्चर का इस्तेमाल निकाल के कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो फॉर गेल्स ट्रैवर्स टेबल। अब इससे भी बड़ा ट्रैवर्स है, तो उसको प्लॉट करने के लिए हमको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए पहले कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और उसके लिए पहले लैटिट्यूड एंड डिपार्चर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इसका मतलब लैटिट्यूड डिपार्चर कैलकुलेट करके हम लोग कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं सर्वे स्टेशन के, और वो कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके ही हम लोग हमारा ट्रैवर्स भी प्लॉट कर सकते हैं। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट work in the theodolite traversing survey, so that we will continue in the next lecture. So till then, thank you, goodbye, see you.